Zevrakra setole brusi frante che sele mahatula Zevraka satala balahatus. Can you all just close our eyes for some time? થોડું સમય શું આપણી આંખોને બંધ કરીશું? Satala bala katala. આવો અન્ય ભાષામાં દેવની સ્તુતિ કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ. Sampala tala ઓ manda. રબા શાખાદા રબાલા Seke prakla kufratisi. Zeli maha subrakata liga brahatele proste. Reke pratu sheviantala parekete. Le koulama sikeida brata yabasive. The Holy Spirit is in this place. पवित्र आत्मा इस जगह में है अभी. પવિત્ર આત્મા જગ્યા પર છે. Every eyes be closed. દરેક આંખો બંધ થઈ જાય. He is moving in this place now. પવિત્ર આત્મા જગ્યા પર ફરે છે. I sense in my spirit that the Lord is doing something new in this place. આ જગ્યા પર હું અનુભવ કરી રહ્યો છું કે પ્રભુ કંઈક નવું કરવા જઈ રહ્યો છે. परमेश्वर एक नया चीजों को कर रहा है यहाँ पे. પરમેશ્વર એક નવું કાર્ય અહીં કરી રહ્યો છે. एक नया कार्यों को परमेश्वर कर रहा है. એક નવું કાર્ય અહીં કરી રહ્યો છે. Come on, come on, come on, come on. जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से. Reke pera para pala pala pala. Rapala para gatavina marata. Rekina pareke sevianta panas. पवित्र आत्मा मूव कर रहा. The Holy Spirit is moving. ઓ પવિત્ર આત્મા અહીં કંઈ કરી રહ્યો છે. पवित्र आत्मा मूव कर रहा है. પવિત્ર આત્મા અહીં ફરી રહ્યો છે. पवित्र आत्मा मूव कर रहा. પવિત્ર આત્મા અહીં ફરી રહ્યો છે. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Reke Jesus. rapa palaka Oh, paraka Rabba sianta Shaka, nala. Rabba Shaka, Repeni Rabba. paraka tapala paraka tapala. Rabba Shaka. Come on, come on. ताली मारते हुए जोर से clap your hands, pray. Oh, जोर Clap की your hands, pray. तालियों जोर से जोर से જોરથી તાળીઓ પાડીએ. जोर से जोर से जोर से जोर से जोर જોરથી से. તાળીઓ પાડીએ. જોરથી તાળીઓ પાડે. જોરથી. Yes, 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 Oh, yes. yeah. जोर से जोर से Oh, जोर से. जोरથી તાળીઓ रेके પાડે. रेबे बे रेके Oh, सेते रिबे लेपेला. शाका, राबा राबा, बाबा बाबा. कदा, रेब्रे के राबा, साली के शिके, पारे के रिबे सेपेना. शाका, लेब्रा का राबा, पारा का साप्रिया રીબા प्रदेश. શાકે આદા રબા. Something new is happening. કંઈક અહીં થઈ રહ્યું છે. The anointing is being released now. ઓ પવિત્ર આત્માનો અભિષેક The અહીંયા ઉતરી anointing રહ્યો is છે. being released now. The anointing is being released. ઓ અભિષેક અહીં પ્રવાહિત થઈ રહ્યો છે. Shakaraba sanda lebrose. I feel like the healing power of God is moving in this place. દેવનું સામર્થ્ય અહીં ચલાયમાન થઈ રહ્યું છે. Healing power is moving now. Healing power. ઓ સાજાપણાનું સામર્થ્ય અહીં ચલાયમાન થઈ રહ્યું છે. If anybody has pain in the body, અહીં કોઈ પણ જેઓ શરીરમાં અત્યારે દર્દનો અનુભવ કરી રહ્યા છે તેઓ I want you to rise up. જો અત્યારે જેઓ પોતાના શરીરમાં દુખાવાનો દર્દનો If અનુભવ there કરી is રહ્યા pain છે on your તેઓ body, પોતાના હાથોને ઊંચા કરે. on your knees, તમારા ઘૂંટણો, on your shoulders, ઓ તમારા ખભાઓમાં, on your big bones. ઓ તમારા પીઠની If પાછળ there જે is દર્દ any છે, kind of sickness, if there is any kind of ઓ sickness, આવા પ્રકારના ઘૂંટણોનો I દર્દ want હોય, you to rise up on ખભાનું your feet દર્દ now. હોય, પીઠનું દર્દ હોય, એવા જેઓ પણ અત્યારે શરીરમાં જે દર્દનો અનુભવ કરી રહ્યા છે તેઓ પોતાના હાથોને Rise ઊંચા up on your કરે. feet. Rise up on your feet. ઓ તમારા હાથોને ઊંચા કરો. Rise up on your feet. ઓ તેઓ તમારા જગ્યા પર ઊભા થઈ જાઓ. જેઓ Come on, અત્યારે come on, come on, શરીરમાં come on. જો અનુભવ કરી રહ્યા The છે healing power દર્દનો, is here. The healing ઓ power is here. જેઓ દર્દનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, ઘૂંટણનું દર્દ હોઈ શકે, All the sick પાછળનું people, પીઠ. can you please come like forward? ઓ શું તમે આગળ આવી શકો છો? All the sick people, please us, please જેટલા help પણ them. બીમાર લોકો છે તમે આગળ આવી જાઓ. If there is any pain in your body, please come forward. ઓ તમારા શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું દર્દ છે તો તમે અહીંયા આગળ આવી The જાઓ. Lord is revealing me a person. પરમેશ્વર એવા લોકોને You recently fall down જેઓ અત્યારે મતલબ થોડા સમય પહેલા જ પડી ગયા છો and you had pain on your body. અને થોડા સમય પહેલા તમે પડી ગયા છો અને તે દર્દ જે તમારા શરીરમાં છે એવા લોકોને પ્રભુ બતાવી રહ્યો છે. The Lord is healing you now. ઓ
ઓ તેમને દેવ સાજો કરી રહ્યો છે. Get ready, get ready, get ready. ઓ તેઓ સાજપણું પ્રાપ્ત Lift કરવા up માટે your તૈયાર hands, થાય. lift up your hands. તમારા હાથોને ઊંચા કરો. Lift up your hands, lift up તમારા your hands. હાથોને ઊંચા કરો. તમારા Every હાથ- pain in your body, ઓ જેઓ પણ તમારા શરીરમાં દર્દ છે તે it will begin to disappear now. ઓ અત્યારે જ તેઓ અદ્રશ્ય થઈ જશે. Right now, અત્યારે જ in the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી, In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી Every pain, હર એક દર્દ disappear now. ઓ અદ્રશ્ય થઈ જાય. Disappear ઓ now. દૂર થઈ જાય. Be healed. ઓ સાજાપણું પ્રાપ્ત Be કરો. healed. ઓ સાજાપણું Be પ્રાપ્ત કરો. healed. સાજાપણું પ્રાપ્ત Be કરો. healed. ઓ સાજાપણું Be પ્રાપ્ત- healed. ઓ સાજાપણું Be પ્રાપ્ત- healed. ઓ સાજાપણું પ્રાપ્ત કરો. I want to pray for the one by one. Can you please come forward? Two by two. Asas, can you please help? બબ્બે જણ લાઈનમાં અહીં એક પછી એક આવતા જાઓ. Two. ઓ બબ્બે જણ Just, Pastor, can you please help me? Help me like worship a song. Just Shakalabha Sepriyatana. બબ્બે જણ લાઈનમાં અહીં એક The પછી એક healing power is here. આવતા. ઓ દેવનું સાજાપણું અહીં The છે. healing power is here ઓ now. સાજાપણું છે અહીં. Every pain in your body. ઓ કેવું પણ પ્રકારનું દર્દ તમારા Where there શરીરમાં is હોય. pain in your body, keep your hands. ઓ જ્યાં પણ તમારું દર્દ છે તમારા The Lord will શરીરમાં, heal you now. ઓ તમારો હાથ મૂકો ત્યાં. Get ready, જ્યાં get પણ ready, get દર્દ- ready. જ્યાં પણ દર્દ છે તમારો હાથ મૂકો ત્યાં. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી, In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી Right now. અત્યારે જ, One. અત્યારે જ ઓ જશે. One. એક, Two. બે, Three. ત્રણ. Be healed. ઓ સાજાપણું પ્રાપ્ત Be કરો. healed. ઓ સાજાપણું Be પ્રાપ્ત healed. કરો. Be healed. Be healed. Be healed now. સાજાપણું પ્રાપ્ત કરો. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી In the name of નામથી. Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી. Asas, can you do one thing? Asas, can you do one thing? I will just lay my hands. जिसका हाथ में जिसके सर में हाथ रख दिया, they can like go. જેમના પર હાથ મૂક્યો છે તેઓ પાછો જતા રહે. જેમના પર હાથ મૂકી દીધો છે તેઓ પાછો જતા રહે. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી. I release healing power right now. ઓ અત્યારે જ એ સાજાપણાની Every ઘોષણા pain, કરો. leave. એ હર એક દર્દ ઈસુના Leave નામથી now. થાય. Leave. ઓ In the છોડીને name of જતો રહે. Jesus. ઈસુ In the name of નાઝરી- Jesus. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના In the નામથી. name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના In નામથી. the name of Jesus. ઈસુ Right now. નાઝરીથી. In the name of અત્યારે Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી. Be healed. ઓ સાજાપણું પ્રાપ્ત કરો. Be healed, be healed. ઈસુ નાઝરીના નામથી. Be healed in Jesus' name. ઈસુ નાઝરીથી Be સાજાપણું healed. પ્રાપ્ત- ઓ સાજાપણું પ્રાપ્ત કરો. Right now, right now, right now. Be અત્યારે healed. In ઈસુ Jesus' name. ઈસુ In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી. In the name of ઈસુ Jesus. નાઝરીના નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી. Right now, be healed. અત્યારે જ સાજાપણું પ્રાપ્ત Be કરો. healed in the name of ઈસુ Jesus. નાઝરી નામથી સાજાપણું Be પ્રાપ્ત healed in the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી Be સાજાપણું healed. પ્રાપ્ત- ઓ સાજાપણું પ્રાપ્ત કરો. Be healed. 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 ઓ સાજાપણું પ્રાપ્ત In કરો. the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી Be healed now. ઓ ઈસુ નાઝરી નામથી. Be healed. ઈસુ નાઝરી નામથી. Right now, in the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી. Be healed in Jesus' ઓ name. ઈસુ નાઝરી નામથી અમે સાજાપણાની ઘોષણા કરીએ In છીએ. the name of Jesus, be ઈસુ healed. નાઝરી નામથી સાજાપણાની ઘોષણા કરીએ In the છીએ. name of Jesus, right ઈસુ now, નાઝરીના નામથી. be healed. ઓ સાજાપણાની 1, 2, 3. ઓ ઈસુ In the name of નાઝરી નામથી. Jesus, be healed. ઓ ઈસુ Be healed now. ઈસુ નાઝરી Be healed now. ઓ ઈસુ નાઝરી નામથી. Be healed. ઓ ઈસુ નાઝરી નામથી. In the name of Jesus, ઈસુ નાઝરી નામથી. be healed. Be healed. સાજાપણાની ઘોષણા કરીએ છીએ. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરી નામથી. In the name of Jesus, be healed. ઈસુ નાઝરી નામથી સાજાપણાની ઘોષણા In Jesus' name. ઓ ઈસુ નાઝરી નામથી. In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી. Mighty name of Jesus. ઓ અત્યારે સાજાપણાની ઘોષણા. Sabrakatala pala sepriatana. Sebreke pratus. Zalike pratus. Shapala hati. Malka pala satana. छूलिया यीशु तेरा लहू छूलिया 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 यीशु तेरा वचन छूलिया Pala braha satana pala katala. चंगाई यीशु लहू में Pala kapratus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. चंगाई यीशु लहू में Thank you, Jesus. चंगाई यीशु वचनों में Thank you, Lord. चंगाई यीशु वचनों में Thank you, Lord Jesus. छूलिया Thank you, Lord Jesus. छूलिया Thank you, Lord Jesus. यीशु ते
शिखी दाला रबल झूले आ यीशु तेरा वचन झूले आ। In the name of Jesus. यीशु नाज़रीन नाम In the name of Jesus. यीशु नाज़रीन नाम थी Father, पिता I pray હું પ્રાર્થના કરું છું a new level of anointing. Let it fall upon these ઓ people. આ લોકો પર એક નવો અભિષેક તમે ઉતારો A new movement of the Holy Spirit. એક પવિત્ર આત્માનું એક નવું સામર્થ્ય તેમના પર ઉતરી Let it begin from today. ઓ આજથી જ Let it begin from today. ઓ આજથી જ Let it begin from today. ઓ આજથી તેમના પર Let ઉતરો it begin from today. ઓ આજથી તેમના પર ઉતરો In the name of Jesus. ઈસુ નાઝરીના નામથી In the name of Jesus we ઈસુ pray. નાઝરીના નામથી In the name of Jesus we pray. ઓ ઈસુ નામથી In the name of the Lord Jesus we pray. ઓ ઈસુ નામથી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ Amen. આમેન આમેન And the church say, and the church say, and the church say, આમેન Amen. Praise the Lord. પ્રેઝ ધ લોર્ડ इसमें वॉइस ऑडिएबल क्या मेरा आवाज सुनाई दे रहा है पीछे तक? શું પાછળ સંભળાય છે Is it audible? શું તમને पीछे वाले लोग શકો છો? आपको आवाज सुनाई मिल रहा है आपको? પાછળ સંભળાય છે अपने पड़ोसी को देखकर बोलो. તમારા પડોશીઓને જોઈને કહો Give them a high five. Brother, look at me. Hey, હાઈ ફાઈ હે give me આપ high કરે. five. હા, Tell them परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है. હા. પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિમાં તમારું સ્વાગત છે एटलीस्ट 2 या 3 इंसान को बोलो परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है. ઓ, Alright. आज हम लोग पास्टर अरविंद के कलीसिया में नहीं, आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आया. और ये कलीसिया सिर्फ बिल्डिंग नहीं, ये एक ऐसा कलीसिया है जहां में परमेश्वर की उपस्थिति है. ओके, दे नो हिंदी. और आपको हिंदी आता है? देन आई थिंक आई विल जस्ट स्पीच इन हिंदी पास्टर. थैंक यू सो मच. प्रेज द लॉर्ड. मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि यहाँ के लोग इतना रेस्पॉन्सिव होगा. आई वॉज इन दिल्ली. मैं दिल्ली में था. उन्हें हालेलुया बुलाने के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है. यहाँ में मुझे कुछ भी बोलना नहीं पड़ रहा है. आप लोग परमेश्वर के लिए चिल्ला रहा है. हमें ये एक बहुत बड़ा साइन है कि परमेश्वर का बेदारी शुरू हो गया. और आज मैं यहाँ में विश्वासी को नहीं देखता हूं. आज मैं परमेश्वर के मैं बड़ा बड़ा दास दासियों को मैं देख रहा हूं. पास्टर अरविंद, आपका कलीसिया विश्वासियों का कलीसिया नहीं, आपका कलीसिया बड़ा बड़ा दास और दासियों के कलीसिया. ब्रदर, आज मैं विश्वासी के बीच में सेवा नहीं कर रहा हूं. आज मैं परमेश्वर के दास और दासियों के बीच में मैं सेवा कर रहा हूं. सभी को हिंदी आता है. सबको हिंदी पता है ना? एवरीवन नोस हिंदी. सबको हिंदी पता. जब मैं यहां में खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा मेरे मन में कहने लगा कि एक नया मूवमेंट परमेश्वर शुरू कर रहा है. पास्टर अरविंद, गेट रेडी फॉर ए सेकंड फेज ऑफ रिवाइवल. बेदारी का अगला स्तर के लिए आप लोग तैयार हो जाओ. ए न्यू मूवमेंट, एक नया मूवमेंट यहां से शुरू हो रहा है. एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है. परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, यहां में परमेश्वर कुछ इंटरसेसर्स को उठा रहा है, खड़ा कर रहा है. हिंदी में इंटरसेसर्स को क्या क्या कहता है? इंटरसेसर्स. इंटरसेसर्स મધ્યસ્થી કરનાર. परमेश्वर इंटरसेसर्स को खड़ा कर रहा है. कैन यू प्लीज से? પરમેશ્વર આ જગ્યા પર મધ્યસ્થી કરનારાઓને ઊભા કરી રહ્યા છે. Lord is raising intercessors from this church. परमेश्वर यहां से कुछ इंटरसेसर्स को खड़ा कर रहा है. मैं अभी परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस करता हूं. इज ऑल ओवर दिस प्लेस.
मैं अपना गवाही में आपके सामने में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पास्टर, दिस रेन इज नॉट प्रॉब्लम है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? आमीन। अगर दुश्मन अगर परमेश्वर का बेदारी को रोक नहीं सका है, ये बारिश क्या परमेश्वर का बेदारी को रोकेगा? लिसन लिसन लिसन। पता है ये बारिश क्या का साइन है? पता है ये बारिश क्या दिखाता है? ये बारिश ये दिखाती है कि शैतान अभी रो रहा है। आपका रोने का समय खत्म, अभी शैतान का रोने का समय। शैतान ने हमें बहुत रुलाया होगा, लेकिन अब नहीं, अभी हमारा समय नहीं, अभी शैतान का रोने का समय है। पास्टर, ये गांव का नाम क्या है? गंगापुर। गंगापुर। गंगापुर का हर एक दुष्आत्माओं का आज रोने का समय। आज जब हम लोग यहां में मिलकर, सी बारिश कम हो गया। Pastor, have you just observed? See. Hallelujah. Literally the rain stopped. आज ये गंगापुर में जितना भी दुष्आत्मा है, आज उन्हें कान खोलकर सुनने दो कि आज विश्वासी नहीं, आज परमेश्वर का दास और दासिया से खड़ा हो रहा है। उन्हें जानने दो कि गंगापुर में कलीसिया है जिसका नाम है FPCG। ये कलीसिया एक साधारण कलीसिया नहीं, ये कलीसिया एक प्रार्थना का कलीसिया। ये एक ऐसा कलीसिया है जो बेदारी लेकर आता है। आज यीशु के नाम से ये जगह में जितना भी दुष्आत्मा है उसके ऊपर हम अधिकार लेता, हम आज्ञा देते यीशु के नाम से। उसका सारा जो हथियार है, जो भी चीजों को उसने पकड़ कर रखा है, आज हम यीशु के नाम से तोड़ता। जो परिवारों को शैतान ने अंधा करके रखा है, जो परिवारों को शैतान ने अंधकार में रखा है, आज हम यीशु के नाम से उन्हें छुड़ाता। आज का रात एक बेदारी का रात होने जा रहा है। आज मैं अरुणाचल से मैं यहां में आपको बताने के लिए आया हूं, आपका रिवाइवल का दूसरा फेज शुरू हो गया। आज से इस कलीसिया में पवित्र आत्मा का मूवमेंट और ज्यादा होने जा रहा है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे एक पवित्र आत्मा ने मेरे मन में ऐसा बोलने लगा कि यहां में परमेश्वर उसका एक नया अभिषेक परमेश्वर भेज रहा है। फ्रेश एनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक, एक नया अभिषेक से परमेश्वर लोगों को भर रहा है। एक नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक। क्या आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो? न्यू एनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक। शफेला खर्राता ज़ाला बराका तबाला बराना लेब्रा सांदा रबो शिकेरिया कपाला। परमेश्वर यहां से कुछ ऐसे इंसानों को उठाने जा रहा जो रात भर नहीं सोकर प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि यहां आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर रात के समय में उठाएगा। परमेश्वर आप में से किसी किसी को दर्शन देने लगेगा, सपना दिखाने लगेगा। रात में प्रभु आपको उठाएगा प्रार्थना करने के लिए। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, हम रोने वाला कलीसिया नहीं, हम प्रार्थना करने वाला कलीसिया। बोलो बोलो बोलो, हम रोने वाला नहीं, हम प्रार्थना करने वाला कलीसिया। अगर पहले आप 1 घंटा प्रार्थना करता था, अभी हमें 2 घंटा प्रार्थना करना। मैं अपना गवाही आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब मैं 17 साल का था, जो यंग पीपल जो यहां में है, दिस विल ब्लेस यू अ लॉट। जब मैं 17 साल के था, जब मैं था, मैंने पहली बार पवित्र आत्मा को मैंने एनकाउंटर किया। उससे पहले मैं एक ऐसा कलीसिया में था जहां का पासवान मुझे ऐसा बताया था कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, पवित्र आत्मा एक अभिषेक है। जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता है,
इंसान इंसान से जानवर बन जाता है. Some people from, Pastor, you can translate that in Gujarat. Some people from when the Holy Spirit comes, some people become snake. જ્યારે તેમને કોઈક પાસ્ટરે બતાવ્યું જ્યારે પવિત્ર આત્મા આવે છે ત્યારે કેટલાક લોકો સાપ બની જાય છે. आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा आता है डिलीवरेंस होने लगता है. तो मुझे बताया गया था कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है. तो एक दिन क्या हो गया, मैंने अपने सीनियर पास्टर साजिद को मैंने मिला, उसका कलीसिया में मैं गया और पहली बार मैंने उसके मुंह से सुना कि पवित्र आत्मा कोई सामर्थ नहीं, पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ्य अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. अपने पड़ोसी को कहो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. पवित्र आत्मा सिर्फ बेदारी नहीं लाता है, वो एक व्यक्ति है. जब मुझे ये पता चला मैंने अपने हाथों को उठाया, मैंने बोला पवित्र आत्मा अगर सच में तू जिंदा है मेरे जीवन को छू. जब अपने हाथ को ऐसे मैं उठा ही रहा था मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे ऊपर कुछ आ गया. आज आप में से किसी किसी के ऊपर में कुछ आने वाला. सो मैंने अपने दोनों हाथों को उठाया, मेरे ऊपर कुछ आने लगा और धीरे धीरे ये चीज मेरे सर से लेके मेरे पांव तक आ गई. और जैसे मेरे पांव तक आया मैं जमीन में मैं गिर गया. आई वॉज कंप्लीटली पैरालाइज. मैं पैरालाइज हो गया. मैं अपने शरीर को मैं हिला नहीं पाया. मैं जमीन में मैं लेटा हुआ था. ऊपर से लेकर नीचे तक पवित्र आत्मा के सामर्थ, इलेक्ट्रिसिटी सामर्थ ऊपर से नीचे तक पूरा मेरे शरीर में आ रहा और मैं रोने लगा. मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है. मैं रोने लगा और मैंने जितना भी मैंने पाप किया था वो सारे पाप को पवित्र आत्मा मुझे बताने लगा. मैंने मन फिराया और मैं रोने लगा. मेरा एक आदत था, मैं अपने मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा होता था, मैं उसको बहुत जोर से मैं चिल्लाता था. ऑलराइट, मैंने अपने मम्मी को बहुत दुख पहुंचाया. लेकिन जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा को पाया उस दिन मेरे लाइफ में पहली बार मैं अपने मम्मी के पास गया, मैंने उसे गले लगाया और मैंने बोला मम्मी मुझे माफ कर दो. उस समय मेरा मम्मी रोने लगा. मैं आज प्रार्थना करता हूं अगर आपका कोई भी है जिसने भी आपको दुख पहुंचाया, मैं ये भविष्यवाणी करता हूं एक दिन वो आपके पास आएगा, खुद वो आपको आकर माफी मांगेगा. आमीन. सो जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आया, मेरे अंदर में प्रेम जागने लगा. एक सच्चा कलीसिया क्या है? एक सच्चा कलीसिया वो कलीसिया है जो परमेश्वर का प्रेम में भरता. बहुत सारा कलीसिया में अभिषेक है पर प्रेम नहीं है. सच्चा कलीसिया वो कलीसिया नहीं है जहां में सिर्फ अभिषेक हो. सच्चा कलीसिया वो है जहां में परमेश्वर का प्रेम भरता. अपने पड़ोसी को देखकर बोलो आई लव यू. बोलो बोलो 3-4 इंसान को देखकर बोलो आई लव यू. अगर आपको उनको अगर पसंद नहीं है फिर भी बोलो आई लव यू. अगर कोई स्माइल नहीं कर रहा है उनका मुंह को पकड़ के ऐसा कर दो. जो स्माइल नहीं कर रहा है आपसे, आपको देखो, जो स्माइल नहीं कर, समझ जाओ वो आपका दुश्मन है. मैं हमेशा कहता हूं पास्टर, मैं शैतान से मैंने नहीं डरता हूं. शैतान मेरे जूतों के नीचे. बोलो बोलो शैतान मेरे जूतों के नीचे. जूतों के नीचे. आज गंगापुर का हर एक दुष्टात्मा हमारे पैरों के नीचे आ गया. आज से मैं आपको वो अधिकार और सामर्थ्य में दे रहा हूं. आज से दुष्ट आत्माओं से मत डरो. मैं सिर्फ एक चीज से डरता हूं. Pastor, can you translate it? I am only scared of serious Christians. હું તેમનાથી ડરું છું જેઓ ખરેખર ગંભીર વિશ્વાસીઓ છે, તેમનાથી ડરું છું. जो क्रिश्चियंस बहुत सीरियस होते हैं ना, वो स्माइल नहीं करता. उनको देखने से मुझे डर लग जाता. इतना डर तो शैतान को देखकर भी नहीं लगेगा जितना डर उनको देखकर लगता. पास्टर कभी नहीं हंसेंगे इस प्रकार से. देख
उनको देखकर ऐसा लगता है मानो वो सोच रहा आज डिनर में तुझे मैं खाने वाला, आज डिनर में हम कोई इंसान को नहीं, आज डिनर में हम शैतान को खाने जा रहे हैं। सो अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, और बाइबल कहते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद का भरपूरी है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज से आपका सारा दुख आपका जीवन का सबसे बड़ा आनंद में बदलने जा रहा है। आज से आप कभी दुख होकर नहीं रोएंगे, आपका आंसू कभी भी, आज से आपका दुख का आंसू नहीं निकलेगा। पता है किस प्रकार का आंसू निकलने जा रहा है? ओनली एंड ओनली आनंद का आंसू। ब्रदर, अगर हम रोएंगे भी ना, दुख से नहीं आनंद से रोएंगे। आमीन, आमीन। अगर हम रोता भी है, हम शैतान को सोचकर या अपना प्रॉब्लम को सोचकर नहीं, हम परमेश्वर का प्रेम को सोचकर रोने वाला लोग बन। आज परमेश्वर कुछ तो बदल रहा है हमारा पीछे। समथिंग द लॉर्ड इज डूइंग। परमेश्वर कुछ कर रहा है। सो जब मैंने पवित्र आत्मा को जब मैंने पाया, मेरे अंदर में प्रेम आने लगा। जिसको मैं प्रेम नहीं कर सकता था, उसको मैं प्रेम करने लगा। जब पवित्र आत्मा के साथ जब सच में जब आप एनकाउंटर करते हो ना, वो सिर्फ आपको अभिषेक से नहीं बढ़ता है, वो आपको प्रेम से बढ़ता है। जिसको आप प्यार नहीं कर सकते हो ना, उनको आप प्यार करने लगता है। अगर यहां में कोई है, अगर आप किसी को प्रेम नहीं कर सक रहा है, आज परमेश्वर आपको प्रेम की आत्मा से भरा। आमीन। पास्टर अरविंद मुझे बता रहा था कितने लोगों ने उसको सताया, परसिक्यूशन लेकर आया, फिर भी पास्टर अरविंद ने कभी उनके बारे में गलत नहीं कहा। पास्टर अरविंद हर समय बोलता है मैं उनसे प्रेम करता हूं। ये एक सच्चा साइन है कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ। सो जब मैं पवित्र आत्मा को जब मैं पाया, मुझे लगा कि मैंने पवित्र आत्मा का एनकाउंटर किया। शुरू में मैं सोचता था कि जिस दिन आप पवित्र आत्मा का एनकाउंटर करते हैं, आप शारीरिक रीति से बदलते हो, शरीर में आपका परिवर्तन आता है, कुछ चेंजेस आते हैं। मुझे लगा मेरा हाइट थोड़ा भर गया होगा, मेरा कर्ली हेयर स्ट्रेट हो गया होगा, यहां में पिंपल था चला गया होगा। खुद को मैंने आईना में देखा, जो हाइट है वही है, कर्ली बाल कर्ली है, यहां में पिंपल था पिंपल भी वही है। मैंने सोचा अरे भाई क्या हो रहा है? मुझे लगा कि शायद से ये पवित्र आत्मा नहीं, शायद से मैं साइकोलॉजिकली मैं गिर गया। ओके, जस्ट इमोशन में मैं गिर गया, मैंने ऐसा सोचा। तो रात के समय में डिनर खाने गया अपने घर में। मेरे एक आदत था कि डिनर के समय में मैं अपनी मम्मी के ऊपर में चिल्लाता था जोर से। तो जब मैं डिनर खा रहा था, मैं अपना मम्मी के ऊपर जब मैं चिल्लाने की कोशिश कर ही रहा था, अचानक से मेरे मन में एक आवाज ने कहा चुपचाप हो जा। मैंने देखा अरे किसने मुझे बोला है भाई, भूत सूत तो नहीं है ना। जब पवित्र आत्मा जब आपका अंदर जब आता है, जब आप किसी को जब आप गाली देने लगते हो ना, पवित्र आत्मा आपको मुंह को बंद कर देता है। आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब भी हमारा मुंह से जब कुछ नेगेटिव कन्फेशन निकाल रहा होगा, ये गलत चीज निकाल रहा होगा, पवित्र आत्मा हमारा मुंह को बंद कर देगा। हमारा मुंह से आज से सिर्फ एक चीज निकलेगा, वो है परमेश्वर का वचन। हर एक नेगेटिविटी हमारा जीवन से हटेगा और परमेश्वर के वचन बाहर निकलने लगे। सो जब मैं अपने मां के ऊपर जब मैं चिल्लाने का कोशिश कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरे मुंह को बंद कर दिया। आई कुड नॉट से नथिंग, मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। मैं डर गया, मैं अपने कमरे में गया, मैं बहुत डर गया। तो मैं सोने के लिए कर रहा था, अचानक से ये आवाज ने फिर से बोला बाइबल पढ़ो। पहले मैं बाइबल जिंदगी में सिर्फ 2 बार पढ़ता था। एक बार जब मैं खराब सपना देखता था, उस समय मेरे मुंह से बहुत जोर से हालेलुया निकलता था। जितना कलीसिया में नहीं बोला ना, उस दिन पूरा निकलता, अंदर से पूरा आत्मा से हालेलुया निकलता। और दूसरा, जब मेरा एग्जाम सामने आ रहा होता है, उस समय सिर्फ मैं बाइबल पढ़ता हूं। परमेश्वर को कभी याद नहीं करेगा, जब प्रॉब्लम में याद करेगा। कुछ क्रिश्चियंस ऐसा होता है,
जो परमेश्वर को सिर्फ अपना प्रॉब्लम में याद करेगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये कलीसिया के लोग ऐसा नहीं। हम लोग परमेश्वर को अपना सिर्फ प्रॉब्लम में नहीं, सिर्फ अच्छाई में नहीं, हर समय हम लोग अपना परमेश्वर को याद करें। तो क्या हो गया कि ये आत्मा ने मुझे बोला कि बाइबल पढ़ो। मैं बाइबल खोला और मैं पढ़ने लगा। मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं बाइबल को नहीं, बाइबल मुझे पढ़ रहा। मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा और मुझे कभी समझ में नहीं आया, मेरे आंख से कभी आंसू नहीं गिरा। लेकिन उस दिन जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो बाइबल मुझसे बात कर रहा। जो मैंने गलती किया था, जो मैंने पाप किया था, जो गलत चीज को मैं कर रहा हूं, ये बाइबल मुझे बातें करने लगा। पूरा रात में रोने लगा, मेरे आंख से आंसू निकलने लगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता, अगर आप इस भविष्यवाणी को रिसीव कर सकते हो तो आप ले लीजिए। मैं आज भविष्यवाणी करता, आज से जब आप बाइबल पढ़ोगे, आप नहीं, बाइबल आपको पढ़ने लगे। आज से जब आप बाइबल को खोलोगे, बाइबल आपको बातें करने लगेगा। आमीन, 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 आमीन। आप शायद से इस सर्विस का पहले शायद से आपने बहुत बार बाइबल पढ़ने की कोशिश किया होगा। पास्टर, मेरा एक प्रॉब्लम था, जब भी मुझे सोने का मन करता था, पता मैं क्या करता था? मैं स्लीपिंग पिल में बाइबल पढ़ता था। बाइबल पढ़ने से बहुत ही अच्छा नींद आता है। अगर यहां में कोई है जो बाइबल सोने के लिए पढ़ता है, आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे। आमीन, आमीन, आमीन। आपका पता नहीं, पर मैं ऐसा था, जब बाइबल पढ़ता ना तब बहुत अच्छा नींद आता है। रात भर नींद नहीं आएगा, जैसे बाइबल खोलेगा नींद आता। अगर यहां में कोई है, अगर आपका भी ऐसा अवस्था है, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, आज से आपका जीवन बदल रहा है। आमीन, आमीन। आज से जब आप बाइबल पढ़ोगे, आपको नींद नहीं लगेगा, आपको परमेश्वर वचन से बातें करने लगे। आमीन, आमीन। आज से जब आप बाइबल को खोलोगे, आप बाइबल को बंद नहीं कर पाओगे, लगातार आप पढ़ने लगोगे। आमीन। परमेश्वर यहां में किसी किसी के अंदर में बाइबल पढ़ने के लिए एक भूखा और प्यासा को परमेश्वर ला रहा है। आमीन। एक ऐसा जनरेशन यहां से खड़ा हो रहा है, जब आप बाइबल को खोलेगा, आप दोबारा बंद नहीं कर पाओगे। घंटा 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 बाइबल पढ़कर आप बैठोगे, परमेश्वर आपको बाइबल से बातें करने लगेगा। जब मैं बाइबल को खोला, मैंने बाइबल को पढ़ा, मेरे आंख से आंसू गिरने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं बाइबल को पढ़कर मैं रोने लगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भी जब बाइबल को पढ़ोगे, आपके आंख से आंसू गिरने लगेगा। मैं बाइबल खोला, मैं रोने लगा। मैंने बाइबल को बंद किया, मैं सोने के लिए मैं जा ही रहा था। अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे फिर से बोला, प्रार्थना करो। मैंने बोला, पवित्र आत्मा, मुझे पता नहीं है प्रार्थना कैसे करनी है, मेरा पहला दिन है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम एनकाउंटर कर रहा हूं। उसने बोला, मैं तुम्हें सिखाऊंगा प्रार्थना कैसा करता। अगर आज यहां में कोई है, अगर आपको पता नहीं है प्रार्थना कैसा करना है, आज पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा प्रार्थना करने की। जब आप अपने शरीर में प्रार्थना करते हो, 1 घंटा आपके लिए 5 मिनट बन जाता है। आपको लगता है आपने 1 घंटा प्रार्थना किया, समय देखिएगा सिर्फ 5 मिनट। लेकिन जब पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर में आते हो, जब आप प्रार्थना करते हो ना, आप अपना प्रार्थना के कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हो। आज मैं इस कलीसिया के ऊपर में भविष्यवाणी करता हूं, आप जब प्रार्थना करने लगोगे, आप दोबारा बंद नहीं कर पाओगे। आमीन, आमीन। एक प्रार्थना का रिवाइवल यहां से शुरू होने लगेगा। आमीन। लोग प्रार्थना 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 करने लगेगा। ये कलीसिया एक प्रार्थना का कलीसिया से जाना जाएगा। घंटा घंटा नॉन स्टॉप आपका प्रार्थना जीवन बदलने लगे। बट प्रार्थना जीवन कब बदलेगा? जब पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर में आएगा।
बिना पवित्र आत्मा का प्रार्थना नहीं कर पाओगे। प्रार्थना आपके लिए बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा जब उतरता है, प्रार्थना आपका जीवन का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे स्वादिष्ट चीज बनने जाएगा। आमीन। सो जब मैं घुटना टीका, मैंने बोला पवित्र आत्मा, मैं आपकी उपस्थिति को भूला था। जैसे मैंने ऐसे कहा, वो उपस्थिति उस कमरे में पूरा भर गए और उसकी उपस्थिति में बैठकर घंटा घंटा में रोने लगा। वहां से मेरा आत्मिक जीवन शुरू हुआ। हर एक रात मैं ढूंढता था, मैं समय को ढूंढता था उसके साथ टाइम बिताने के लिए। उस समय मैं अकेले, मेरा खुद का बेड नहीं था, मैं अपना भाई के साथ सोता था। मेरा भाई एक चीज में बहुत माहिर था, पता है क्या है? एक गेम है, उस गेम का नाम है पबजी। किस किस ने पबजी का नाम सुना है? किस किस ने पबजी खेला? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पबजी बैन कर दिया है भारत से। मेरा भाई रात भर पबजी खेलता था। और आप लोग जो पबजी प्लेयर, आपको पता है, आपका रात आपका दिन होता है। रात भर आप खेलते हो। मेरा भाई पास रात का 1-2 बजे तक वो पबजी खेलता था। और जब तक वो पबजी खेल रहे, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं पवित्र आत्मा के साथ में टाइम नहीं बिता सकता, क्योंकि वो मुझ पर हंसेगा। तो मैं रुकता था कि कब वो सोएगा। जैसे मेरा भाई सोता था, पता मैं क्या करता था? रात का 1-2 बजे, जैसे मेरा भाई सोता था, मैं अपने बेड से नामता था, मैं अपने रूम को लॉक करता था, लाइट्स ऑफ, एंड आई यूज्ड टू नील डाउन। मैं घुटना टेकता था और मैं बोलता था, पवित्र आत्मा तुम्हारा स्वागत है। आज पवित्र आत्मा यहां में ऐसा लोगों को ढूंढता है जो कहेगा, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। हमारा प्रार्थना ये है, प्रभु मुझे चंगाई करो, मुझे आशीष करो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। नहीं, आज से हमारा प्रार्थना बदलने जा रहा है। आज से हम नहीं बोलेगा प्रभु मुझे ये दो, ये दो। हमारा एक ही प्रार्थना विषय होगा, वो होगा प्रभु तेरा उपस्थिति। ये जो कलीसिया है, ये एक ऐसा कलीसिया होगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगेगा। आज से आप सभी लोग जो भी मुझे सुन रहा है, आज से जब आप प्रार्थना करने लगोगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमरे में आने लगेगा और घंटा घंटा आप उसकी उपस्थिति में समय बिताने लगे। मैं अपने घुटना टीका, मैंने बोला पवित्र आत्मा तुम्हारा स्वागत है। जैसे मैंने ऐसा बोला, उसका उपस्थिति आता था। एंड आई यूज्ड टू टॉक, और मैं उससे बातें करता, वो मुझसे बातें करता था। पता है बहुत सारा क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम क्या है? प्रेयर इज ए कन्वर्सेशन। Pastor, you can translate it. Prayer is a conversation. પ્રાર્થના કરવું એ વાર્તાલાપ કરવા બરાબર છે. Conversation is not a one man speaking, conversation is a two man speaking. પ્રાર્થના એક બાજુથી બોલવાનું નહીં, બંને બાજુથી કરવાનું છે. સાંભળવાનું છે અને પ્રાર્થના કરવાનું છે. When we pray, જ્યારે આપણે પ્રાર્થના we કરીએ, are the only ones talking. જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, આપણે જ બોલીએ છીએ. As if we are God and as if like we are God and like God is some kind of human. આપણે એવી રીતના રહીએ છીએ, આપણે પરમેશ્વર છે અને બીજું સાંભળવા વાળું છે, એવી રીતના આપણે પ્રાર્થના કરીએ. हम जब प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। 1 घंटा प्रार्थना करेगा, कन्याकुमारी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और जैसे परमेश्वर आपको बातें करने के लिए जब शुरू करता ही आप बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। इसके बाद लोग कंप्लेन करते हैं परमेश्वर मुझसे बात, अरे परमेश्वर आपको कैसा बात करेगा जब आप उसको समय नहीं देते हो बोलने के लिए। When was that last time you stopped to hear the voice of God? એવો છેલ્લો સમય તમારો કયો હતો કે તમે છેલ્લી વખતે દેવનો અવાજ સાંભળ્યો? I want to rise great men and women of God in this place. આ જગ્યા પર પરમેશ્વરના મહાન દાસ દાસીઓને હું ઊભા થતા જોવા I માંગુ છું. want you to change your prayer life from today onwards. આજની રાત્રિ બાદ તમારું પ્રાર્થનાનું જીવન બદલતું હું જોવા માંગુ છું. क्या मैं आपको कुछ एक चीज बता सकता हूं? There are so many things, लेकिन एक चीज मैं बोलकर जाऊंगा।
There are two kind of things. બે પ્રકારની વાતો છે. One is to pray, એક તો પ્રાર્થના કરવાનું another is to pray effectively. અને બીજી પ્રાર્થના છે પ્રભાવશાળી પ્રાર્થના કરવાનું. એક તો પ્રાર્થના કરવાનું અને બીજી પ્રભાવશાળી પ્રાર્થના કરવાનું. Today I will tell you how to pray effectively. આજે હું બતાવવા માંગુ છું કે કઈ રીતના તમે પ્રભાવશાળી પ્રાર્થના કરી શકો. Somebody say प्रभावशाली प्रार्थना. प्रभावशाली प्रार्थना. हमारा प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं पर प्रभावशाली प्रार्थना होगा. आमीन. When you pray, જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો, every time you pray, जब भी आप प्रार्थना करते हो, make sure that you hear the voice of God. જ્યારે પણ તમે પ્રાર્થના કરો એ ખાતરી કરી લો કે જ્યારે પ્રાર્થના કરો ત્યારે Pastor, દેવનો અવાજ તમે સાંભળો. A prayer without hearing the voice of God is not prayer. જે દેવનો અવાજ સાંભળ્યા વગર જે પ્રાર્થના કરવું એ પ્રાર્થના નથી. We will pray for, हम लोग घंटा घंटा प्रार्थना करता है, लेकिन आपको जब मैं आपको पूछूंगा कि प्रार्थना करने और क्या आपने परमेश्वर की आवाज सुना है, there is the question. જ્યારે તમે કલાકો સુધી પ્રાર્થના કરો છો પણ તમે દેવનો અવાજ સાંભળતા નથી, ત્યાં એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે તમે શું પ્રાર્થના કરો. So जब आप प्रार्थना करते हो, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना. मैं आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब भी आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर की आवाज आपको बातें करने लगे. मैंने बहुत सारे ऐसे इंसानों को देखा जो प्रार्थना बहुत करता है, 1 2 3 4 घंटा, लेकिन जब मैं पूछता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्या बात किया है, कुछ भी नहीं. ऐसा प्रार्थना जहां पर आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, वो प्रार्थना नहीं. जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा ध्यान हमारा प्रार्थना रिक्वेस्ट में नहीं, हमारा ध्यान उस पर होना. जब हम प्रार्थना करता है, हमारा ध्यान प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगने से कहीं ज्यादा उसके आवाज को सुनने में होना. आमीन. जब भी हम प्रार्थना करते हैं, बोलना प्रभु मुझे तेरा आवाज को सुनना, प्रभु आज मुझे बातें कीजिएगा. अगर आप सभी लोग अगर ऐसा करने लगोगे, अगर आप सभी लोग अपने प्रार्थना में अगर परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेगा, आई एम टेलिंग यू, इट वांट एक सप्ताह भी नहीं लगेगा आपका जीवन में परिवर्तन आने लगे. पता है परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता, लेकिन परमेश्वर का छुटकारा उसका आवाज में. लेकिन प्रॉब्लम ही कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता. आज जब आप प्रार्थना करोगे, आप सभी लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने लगोगे. सो जब मैं वहां में था, मैं परमेश्वर की आवाज को मैं सुनता था. सो आज भी जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, 1 2 3 4 घंटा भी क्यों ना लग जाए, जब तक मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, मैं प्रार्थना बंद नहीं करता. एक बार किसी ने मुझे पूछा कि पास्टर कब तक मुझे प्रार्थना करना है, 1 2 घंटा 4 5 घंटा. आज मैं आपको आंसर दूंगा, आपको तब तक प्रार्थना करना है जब तक आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हो. आपको समझ में आ रहा है? आप तब तक अपना प्रार्थना को मत रोकिए जब तक परमेश्वर की आवाज आपको बातें ना करे. ये कलीसिया एक ऐसा कलीसिया होने जा रहा है जहां में परमेश्वर सिर्फ पास्टर अरविंद को नहीं पर आप सभी को बातें करेगा. परमेश्वर की आवाज आप सभी को सुना मिलने लगेगा. सो जब मैं प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा की आवाज, और मेरे मन में सिर्फ एक ही डिजायर था, एक ही इच्छा था, प्रभु मुझे आपको जानना, मैं आपकी उपस्थिति में मैं समय बिताना चाहता हूं. जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताते हो, आपका जीवन का हर एक प्रॉब्लम चला जाता है. आज पवित्र आत्मा नॉर्मली मैं इतना शांति से मैं प्रचार नहीं करता, लेकिन आज मुझे पवित्र आत्मा मुझे ऐसा लीड कर रहा. आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढता है यहां से जो उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो. Pastor, you can translate it. Those who can host the presence of God. જેઓ દેવની ઉપસ્થિતિને ગ્રહણ કરી શકે છે, those who can spend hours and hours in the presence of God. તે જ લોકો
કલાકો ને કલાકો દેવની ઉપસ્થિતિમાં બેસી શકે છે. God is looking for such kind of generation. આ પ્રકારના લોકોને દેવ જોઈ રહ્યો છે. एंड मैं विश्वास करता हूं यहां में से कुछ लोग, आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में घंटा घंटा आप लोग बिठाने जा रहे हो, उसकी उपस्थिति को लेकर आप सब लोग चलोगे. He is looking for such kind of people. वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों की. शायद से आज का मैसेज सबके लिए नहीं, लेकिन जो आज इसको स्वीकार कर सकेगा, आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से आपका जीवन में एक बड़ा बदलाव आने लगे. मैं अपना मम्मी का कहानी बताकर मैं एंड करना चाहता हूं. जो मेरा फैमिली में मेरा मम्मी था जिसने सबसे पहले यीशु को स्वीकार किया. मेरा पूरा फैमिली उस समय वो एक अलग धर्म का था. एंड मेरा पापा शराब पीता था. ही वॉज एन एल्कोहल. वो दारू पीता था, वो शराब पीता था. और मेरा पिताजी जो था, जो शराब के नशा में होकर वो मेरा माँ को मारता था, पीटता था. जब मेरा when my mom was pregnant with her third child, my father beat her. જ્યારે મારી મમ્મી ત્રીજા બાળકને માટે પ્રેગ્નન્ટ હતી ત્યારે મારા પપ્પા મારી મમ્મીને મારતા હતા. ऐसा कंडीशन था हमारा परिवार. एक दिन मेरा मम्मी ने सोचा कि जीने से मरना ही बेहतर है. लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि नहीं, मेरा 3 बच्चा है. अगर मैं जीता भी हूं, मैं अपने बच्चे के लिए मैं जीऊंगा. इस प्रकार से सोचकर वो जो मरने के लिए नहीं सोचा. एक दिन उस रास्ता से वो गुजर ही रहा था. उसने कलीसिया को देखा. उसके मन में उसको ऐसा लगा कि चलो एक चक्कर कलीसिया में घुस कर देखता. वो कलीसिया में घुसा. पहली बार जीवन में इतना शांति, इतना प्रेम उसने अनुभव किया. और उस दिन मेरा मां ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया. उसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसने स्वीकार किया. मेरा मम्मी घर आया. मेरा पिताजी को पता चल गया कि मेरा मम्मी चर्च गया. उस दिन मेरा पिता ने मेरा मम्मी को इतना टॉर्चर किया, इतना सताया, अब सोच भी नहीं सकता. मेरे पिताजी ने मेरा मां को बोला कि आज से तू कलीसिया नहीं जाएगा, नेक्स्ट संडे तू कलीसिया नहीं जाएगा. उसी अगला संडे मेरा मम्मी फिर कलीसिया गए. हमारा लाइफ में जितना भी परसिक्यूशन क्यों ना आ जाए, जितना भी रुकावट क्यों ना आ जाए, हम लोग रुकने वाला में से नहीं. शैतान जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम हारने वाला में से नहीं है. हम मरते दम तक हम आगे बढ़ने वाला. मेरे पिता ने मेरे मम्मी को बोला तू नेक्स्ट संडे तू चर्च नहीं जाएगा. उसी संडे मेरा मम्मी चर्च गए. जो चीज इंसान लोग आपको बोलता है कि आप नहीं कर पाएगा, मैं भविष्यवाणी करता उसी चीज को आप कर कर दिखाएगा. अगर किसी ने बोला है कि आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले. अगर आपका पेरेंट्स ने आपको कहा है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है, मैं कहता हूं आपसे बहुत कुछ होने जा रहा. मेरा मम्मी कलीसिया गया. मेरा पिता ने बहुत बार मेरा मम्मी को रोकने का कोशिश किया, पर मेरा मम्मी कभी रुका नहीं. हर दिन वो कलीसिया, हर दिन वो कलीसिया. मैं विश्वास करता हूं कि एक ऐसा पीढ़ी खड़ा हो रहा है जिसके लाइफ में सताप भी क्यों ना आ जाए, परसिक्यूशन भी क्यों ना आ जाए, ओपोजिशन भी क्यों ना आ जाए, ये पीढ़ी पीछे मुड़ने वाला में से नहीं. वो पीछे नहीं मुड़ेगा. पास्टर, आई एम टेलिंग यू, जितना भी परसिक्यूशन क्यों ना आ जाए, ये परसिक्यूशन कभी हमें रोक नहीं सकेगा. उल्टा ये परसिक्यूशन हमारे जीवन में और बढ़ोतरी लाने वाला. कैन यू ट्रांसलेट दिस इन हिंदी? डू यू नो कॉर्न? COR and कॉर्न, मकाई, कॉर्न, पॉपकॉर्न, मकाई. जब हम पॉपकॉर्न को जब बनाता है, जब प्रेशर कुकर में रखता है, जब पॉपकॉर्न को जब हम लोग जब प्लेट में जब रखेगा, क्या उस समय वो पॉपकॉर्न क्या बोलते हैं उनको, खुल जाएगा, खुलता है क्या? उस समय खुलता है क्या? नहीं ना. लेकिन जब हम प्रेशर कुकर में जब डालता है और जब प्रेशर देने लगता है, तब जाकर वो पॉपकॉर्न क्या होता है, वो जो मकाई क्या है, वो खुलने लगता है. उसी प्रकार से
जब हमारे जीवन में, वो एक प्रेशर कुकर की तरह है, वो हमें खुलने में उल्टा मदद करता है। मेरा मम्मी कलीसिया बार बार जाते रहा। मेरा पिता एक दिन गुस्सा हो गया, बोला कि अच्छा तू बहुत कलीसिया जा रहा है। मेरे पिता ने, ब्रदर कम प्लीज। मेरे पिता ने मेरा माँ को पकड़ा, उसका हाथ को पकड़ा, कमरे में ले गया, उसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया और बोला अभी कलीसिया जाकर दिखा। उसमें पता है मेरे मम्मी ने क्या बोला? अगर मैं कलीसिया नहीं जा सकता हूं, मैं कलीसिया को यहां लेकर आऊंगा। वो लोग कलीसिया को, ये बिल्डिंग को बंद कर सकता है, लेकिन आपको और हमें वो बंद नहीं कर सकता। मैं आज से भविष्यवाणी करता हूं, आपका घर कलीसिया बने। जो उपस्थिति इस कलीसिया में आपके घर में भी होने लगेगा। पता है कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया कौन है? बोलो बोलो, मैं हूं। अपना पर्ची को देखकर बोलो, आप परमेश्वर का कलीसिया है। चंगाई कहां में है? कलीसिया में। आनंद कहां में है? आप क्या है? तो अगर किसी को चंगाई चाहिए, किसके पास आना है? पास्टर, ये आपका विश्वासी सिर्फ चंगाई प्राप्त करने वाला नहीं, लोगों को चंगाई करने वाला बनने वाला। आज परमेश्वर आप सभी के हाथों को अभिषेक करेगा। आज से आप नहीं बोलेगा पास्टर मेरा बीमार है प्रार्थना कर दो। आप पूछेगा किसी का बीमार है मैं प्रार्थना करूं। आज से आप नहीं बोलोगे मुझे छुटकारा दो, आप बोलेगा प्रभु मुझे किसी को छुटकारा देना है। Pastor, translate this. You will not just receive healing, you will begin to give healing. તમે સાજાપણું ખુદ પ્રાપ્ત ન કરશો, તમે બીજાને સાજા કરતા થઈ જશો. You will not just receive deliverance, you will give deliverance. તમે પોતે છુટકારો નહીં આપશો, પણ તમારા દ્વારા પ્રભુ છુટકારો અપાવશે. आज से हम पास्टर को प्रार्थना रिक्वेस्ट ने उल्टा हम किसी और के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। एक सौ को बोलो, आप कलीसिया हो। मैं कलीसिया हूं। आप कलीसिया हो। आप कलीसिया बोलो बोलो, हो। अगर किसी को चंगाई चाहिए, अगर किसी को चंगाई चाहिए वो आपके पास आए। आमीन। सो मेरा पिताजी ने मम्मी को बंद कर दी और मेरा मम्मी ने बोला तुम मुझे यहां में लॉक कर सकते हो, शायद से तुम मुझे कलीसिया जाने से रोक सकते हो। एक काम करता, मैं कलीसिया को यहां पर ही लेकर आऊंगा। उस समय मेरा पिताजी ने सोचा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने सोचा कि फाइनली मैंने अपना पत्नी को कलीसिया जाने से रोक दिया है, पर उसने अपना जीवन का सबसे बड़ा गलती किया, उसने खुद अपना घर को एक कलीसिया बना दी। अगर आपको कोई परसिक्यूट कर रहा है, आपका पति हो या पर आपका परिवार हो या आपका पेरेंट्स हो, डोंट वरी, वो अगर आपको बोलते कलीसिया मत जाओ, अपना घर को कलीसिया बना दो। आपका फैमिली को जीवन में परिवर्तन आने के लिए कलीसिया आने का जरूरत नहीं है। आपका घर में भी परिवर्तन हो सकता है। जब मेरा मम्मी जब कमरे में था, पता है मेरा मम्मी ने क्या, मेरा मम्मी का प्रार्थना कैसा था? मेरा मम्मी कब क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने मुझे ऐसा किया है? मेरे मम्मी का मुंह से एक ही प्रार्थना निकलता था, यीशु तेरे उपस्थिति नीचे आ, यीशु तेरी उपस्थिति नीचे है। उसने कभी शिकायत नहीं किया कि परमेश्वर मेरा पति शराब पी रहा है, मेरा पति का ये प्रॉब्लम, मेरा परिवार में ये प्रॉब्लम। नहीं, उसका एक ही प्रार्थना था, प्रभु तेरा उपस्थिति नीचे आ। जिस समय परमेश्वर का उपस्थिति आता है, आपका हर एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट का उत्तर मिलने लगता। पर हमारा प्रॉब्लम ये है, हम परमेश्वर की उपस्थिति पर ध्यान नहीं देता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा पति को बदल दे, मेरा पति को बदल दे। आज अपना पति को बदलने से कहीं ज्यादा प्रार्थना करो, प्रभु तेरा उपस्थिति नीचे आ। जिस समय परमेश्वर की उपस्थिति आएगा, आपका पति, आपका परिवार बदलने लगेगा। मेरा मम्मी कभी मेरे पिता के लिए प्रार्थना नहीं किया।
उसका एक ही प्रार्थना रिक्वेस्ट था, प्रभु मेरा घर तेरा घराना, मेरा घर तेरा उपस्थिति से भरने पाए। मेरा मम्मी ने प्रार्थना किया। एक दिन पता है क्या हुआ, मेरे पिताजी मेरे मम्मी के पास आता है, ब्रदर प्लीज कम। आज ये मेरा मम्मी है, मैं मेरा पिता। मेरा पापा मेरे पिताजी मेरे मम्मी के पास आए और उसको पता है क्या बोला, उसका हाथ पकड़ा और बोला कि आज मैं तुझे कलीसिया लेकर जाऊंगा। जो आपको कलीसिया जाने से मना कर रहा था, वही इंसान आपको कलीसिया लेकर जाएगा। अगर आपका परिवार आपको कलीसिया मत जा मत जा मत जा बोलता था, एक समय और उल्टा वो आपको हाथ पकड़ के बोलेगा चलो कलीसिया जाएगा। पास्टर हमारे कलीसिया में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। पहले जो पेरेंट्स शिकायत करता था कि मेरा बच्चा कलीसिया नहीं जाता, कलीसिया नहीं जाता, अभी शिकायत कर रहे पास्टर मेरा बच्चा ज्यादा ही कलीसिया जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपके परिवार में भी ऐसा होने पाए। आमीन। सो मेरा पिता ने मेरा माँ को कलीसिया ले गए और उसको कलीसिया में ड्रॉप कर दिया और वो घर चला गया। जब मेरा मम्मी जब कलीसिया में घुसा, उसने बोला प्रभु ये काफी नहीं है, मेरा पति को मेरे साथ कलीसिया में आना। कलीसिया तक चोरना काफी नहीं, कलीसिया के अंदर उसको घुसना। और फिर से प्रार्थना किया। क्या था प्रार्थना? प्रभु तेरा उपस्थिति नीचे आए। आज जो भी यहां में मम्मी से जो भी लोग हैं, आज से आपका प्रार्थना शिकायत मत कर, परमेश्वर का सामने अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट मत डालना। परमेश्वर को कहो परमेश्वर आपका उपस्थिति नीचे आने पाए। मैं आपको देखो प्रार्थना का सीक्रेट मैं बता रहा हूं, मैं आपको प्रार्थना का रहस्य बता रहा हूं। जिस समय आप अपने कमरे में अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति को लाओगे, जो आपके लिए नामुमकिन था वो मुमकिन होने लगे। जो चीज पहले आप नहीं कर सक रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति करके दिखाएगा। उपस्थिति नहीं आने के पहले मेरा मम्मी ने कितना बार कोशिश किया मेरा पापा को कलीसिया लाने के लिए, कभी नहीं आया। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति आया, मेरा मम्मी ने मेरे पापा को कभी नहीं बोला कि चर्च आओ। जब उपस्थिति आता है ना, उपस्थिति आपका बिहाफ में, कैन यू ट्रांसलेट इट? व्हेन द प्रेजेंस ऑफ गॉड कम्स, प्रेजेंस ऑफ गॉड बिगिन्स टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ यू। જ્યારે દેવની ઉપસ્થિતિ તમારા પર આવી જાય છે, ત્યારે દેવની હાજરી એ તમારા દ્વારા બોલવા લાગે છે। जब परमेश्वर की उपस्थिति आता है, आपको किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, उपस्थिति खुद ब खुद अपने आप से करने लगे। अगर आप अपने परिवार में किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी का परिवर्तन के लिए, आपका परिवार हो सकता है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आज से आपको क्या प्रार्थना करना है? प्रभु तेरी उपस्थिति नीचे आ। जिस समय उसका उपस्थिति नीचे आएगा ना, आप जिसके लिए प्रार्थना करो वो खुद आपके पास आएगा, बोलेगा प्लीज मुझे कलीसिया ले जाओ। मेरे मम्मी फिर से प्रार्थना की, प्रभु तेरा उपस्थिति नीचे आने पर। एक दिन मेरे पापा मेरे मम्मी को ड्रॉप कर रहा था कलीसिया में। मेरे मम्मी कलीसिया में घुस गया और रो रो कर वो आराधना कर रहा है, परमेश्वर का प्रेम को याद कर रहा है। अचानक से उसने ऐसा पीछे देखा, जिस अचानक से आगे में था वो पीछे ऐसा देखा, वो पीछे सीट में मेरे पिताजी बैठा हुआ। जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, चिंता मत करो, वो कलीसिया में आने जा रहा है। यहां में पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार से कहता है कि यहां में कोई है, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु उसका जीवन को बदल दे, उसको जीवन को बदल दे, प्रभु उसको सच्चाई में आने दे, उसे आपको जानने दे, उसकी आंखें को खोल दीजिए। आज प्रभु आपसे कहता है, आपका प्रार्थना को उसने सुन लिया। अब जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा था, मैं भविष्यवाणी करता हूं वो मसीह यीशु में आने जा रहा। आपका पूरा परिवार, पूरा गांव यीशु में आएगा। लेकिन रहस्य क्या है? रहस्य क्या है? प्रभु तेरा उपस्थिति। सभी लोग बोलो प्रभु तेरे उपस्थिति। कोई कोई होता है रोता है, प्रभु मेरा पति। पास से वो इतना रोता है 10 बकेट को फिल कर देता है अपने आंसू से।
आज से रोना नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो शिकायत करना बंद। आज से हम ये नहीं बोलेगा प्रभु ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरा पति ये वो मेरा पति का नाती का मात जो भी हो, आज से वो हमारा प्रार्थना नहीं होगा। हमारा प्रार्थना सिर्फ एक होगा, प्रभु तेरा उपस्थिति, तेरा उपस्थिति, सब लोग बोलो प्रभु तेरा उपस्थिति नीचे आने पाए। आज से हमारा प्रार्थना होगा, प्रभु तेरा उपस्थिति गंगापुर में उतरने पाए। कौन कौन पॉल और साइलस को जानता है? पॉलस और साइलस, उन्हें बंधन, उनके ऊपर चेन्स डाल दिया गया था। जंजीर कहते हैं ना हिंदी में, जंजीरों से उन्हें बांध दिया गया था। जंजीर आपको शायद से बांध सकता है, लेकिन आपको प्रार्थना को नहीं बांध सकता। जंजीर ने उनके हाथों को बांध कर रखा। ब्रदर वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता है, लेकिन प्रार्थना तो चल सकता है ना। वो प्रार्थना करने लगा। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे पास, वहां पर कभी नहीं लिखता है कि उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु मुझे यहां से छुटकारा दो। प्लीज somebody, प्लीज गेट दिस। बाइबल में यह नहीं लिखा, पॉल और साइलस ने कभी प्रार्थना नहीं किया पास्टर की प्रभु हमें यहां से आजाद करो। बाइबल कहता उल्टा वो परमेश्वर का आराधना और स्तुति करने लगा, क्योंकि उनको पता है कि छुटकारा का प्रार्थना से कहीं ज्यादा उसका उपस्थिति भरा। पॉल और साइलस को जंजीरों से आजादी छुटकारा का प्रार्थना नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति ने दिलाया। आपको समझ में आ रहा है? पॉल और साइलस ने बोलो प्रभु मुझे जेल में रख दिया गया है, मुझे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहां में चेंज बांध दिया गया है, हम चल नहीं पा रहे। उसने ये प्रार्थना नहीं किया। बाइबल कहता है वो आराधना करने लगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति को भुलाने लगा। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान हुआ, उसी समय बाइबल कहता है सारा जंजीर टूट गया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जिस समय उपस्थिति आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में, आपके जीवन से हर एक जंजीर टूटने लगेगा। प्रभु तेरा उपस्थिति, तेरा उपस्थिति। जब मैं ये कह रहा हूं, मैं आई कैन फील द पावर ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस कर रहा। प्रभु तेरा उपस्थिति नीचे आने पाए। प्रभु तेरा उपस्थिति सिर्फ गंगापुर में नहीं, पूरा गुजरात में, पूरा भारत में, पूरा दुनिया में आने पाए। शाखा लाभाला रेबेना मारा सफियान तलियान de lebrosi prakla kapa pala pala prata parakata prendes lebreke prata yapala। आज से हमारा प्रार्थना को शिकायत का प्रार्थना नहीं, प्रभु तेरा, प्रभु तेरा। पीछे वाले लोग प्रभु तेरा कहना। क्या मैं आपको और कुछ बता सकता हूं? अगर आपको रुपया पैसा में अगर आपको आशीष चाहिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अगर आपको आनंद चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए, वो सारा चीज परमेश्वर की उपस्थिति में। जो आपको चाहिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर आपको छुटकारा चाहिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार बदल जाए, वो कहां में? परमेश्वर का। अगर आपको रुपया पैसा में अगर आशीष चाहिए, वो कहां में? क्या आपको समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड ए हायर लेवल ऑफ प्रेयर। આને કહેવાય છે ઉચ્ચ સ્તરની પ્રાર્થના। See, God doesn't listen to every prayer. પરમેશ્વર હરેક પ્રાર્થનાને સાંભળતો નથી। God listens to only that prayer which is aligned with the word of God.
પરમેશ્વર તેવી જ પ્રાર્થનાઓને સાંભળે છે જે વચનની સાથે જે જોડાયેલી પ્રાર્થનાઓ आप છે खुद તેવી सोचिए, देखो इतना सारे लोग घंटा घंटा प्रार्थना करते हैं, क्यों परमेश्वर उनका प्रार्थना को उत्तर नहीं देता? क्योंकि प्रार्थना का उत्तर सिर्फ वो प्रार्थना में नहीं, आप क्या प्रार्थना करो वो मैटर करता है। आपका प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। और आज मैं आपको, एक्चुअली मुझे नहीं बताना चाहिए, ये मेरा सीक्रेट है, लेकिन आज मैंने आपको बता दी। नो एक्साइटमेंट ब्रदर, हमें क्या करना है? प्रभु तेरा उपस्थिति। पास्टर, मेरा मम्मी ने कहा प्रभु ये काफी नहीं। वो बोला प्रभु मेरा पति को सिर्फ कलीसिया के अंदर सिर्फ नहीं घुसना है, उसे तेरे साथ आमना सामना करना। प्रभु तुझे उन्हें छूना है। मेरा मम्मी फिर से अपने कमरे में गया, घुटना टीका, बोला प्रभु तेरा उपस्थिति, प्रभु तेरा। वो प्रार्थना करने लगा। एक दिन वो कलीसिया में था, वो प्रार्थना कर रहा, आराधना कर रहा है, आंसू बह रहा है। अचानक से उसने एक आदमी का रोने वाला आवाज को सुना। वो अपनी आंख को जस्ट ऐसा ही खोला, पता है कौन था? मेरे पिताजी आगे में रो रहा है। मम्मी शॉक्ड, और उसका सिर्फ आंख से आंसू, नाक से भी आंसू निकलने लगा। समझ गया? इतना खतरनाक, इतना भयंकर से रोया हो, नाक से आंख से हर जगह से आंसू निकलने लगा। मेरा मम्मी ने देखा ये क्या हो रहा है, और पहली बार मेरा पापा खड़ा हुआ, मेरे मम्मी को गले मिलाया और बोला मुझे माफ कर दो। ये मेरा पापा जो मेरे मम्मी को इतना पहले मारता था, टॉर्चर करता था, जिस समय पवित्र आत्मा ने उसको छुआ ना, उसने मेरे मम्मी को गले मिलाया, बोला मुझे माफ कर दो। अगर यहां में कोई है, अगर आपका फैमिली या आपका पति या कोई भी अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मैं आज आपको कहता हूं उसकी उपस्थिति को भुलाओ। जिस समय उसकी उपस्थिति आएगा, जो इंसान के लिए आप प्रार्थना करो खुद आपके पास आने लगे। मैं ये दो बात कहकर मैं खत्म करूंगा, और 9 बज गया। एक ऐसा जनरेशन को परमेश्वर ढूंढता है, राइट? स्पेशली द यंग पीपल, जवान लोग, मेरे बातों को ध्यान से सुनना। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो गंता गंता, पास्टर इफ पॉसिबल, पास्टर मैन ऑफ गॉड, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, वन डे इन आवर चर्च पास्टर, हम लोग आरबीआई में पास्टर वी विल होस्ट ए 3-day मीटिंग, यूथ मीटिंग पास्टर। शेल्टर हम लोग देगा, एवरीथिंग वी विल डू पास्टर। प्लीज पास्टर ब्रिंग योर यूथ्स। आज जो भी यूथ से, आई वेलकम यू इन आवर प्लेस। वी विल हैव ए ग्रेट टाइम इन द लॉर्ड, ऑलराइट? बिकॉज आई वांट, मैं इनको पास, आई वांट टू टॉक विद देम मोर, बिकॉज दे आर सच लविंग पीपल, बट बिकॉज ऑफ टाइम आई कैन नॉट टॉक विद देम। So the young people, मेरा पास टाइम नहीं है, right? Because tomorrow I need to leave. So I want to focus on you and I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ગંગાપુરના જુવાનોને, અરુણાચલ પ્રદેશમાં જુવાનોને રહેવા 3 દિવસની ઉપવાસ પ્રાર્થનામાં નિમંત્રણ પ્રભુના દાસ આપે છે. I welcome all the people of Gangapur FPCCC. Welcome to Arunachal Pradesh. आपका खुला खुलम आपके स्वागत, आप सबके लिए स्वागत है। गंगापुरना दरेक विश्वासी भाई बहनों ने, पास्टर अगर कोई भी यहाँ से आता है पास्टर, आपको मुझे कॉल करके बताना पड़ेगा। आई विल पर्सनली कम टू पिक यू, मैं पर्सनली आऊंगा आपको पिक करने के लिए। यंग पीपल लिसन टू मी, यंग पीपल, जवान लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनो। परमेश्वर ये समय में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी उपस्थिति में रहेगा, जो उसकी उपस्थिति को भुलाने लगे, जो पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने के लिए तैयार। किसी ने मुझे पूछा पवित्र आत्मा से कैसा बात करना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल लेसन दूंगा। तैयार हो आप लोग? आज से मैं आपको मेरा सीक्रेट बता रहा हूं, मैं आपको मेरा रहस्य बता रहा हूं। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट टू माय अनॉइंटिंग।
મારા અભિષેકનું આ એક રહસ્ય હું તમને બતાવવા માંગુ છું. पास्टर आई वेंट टू, मैं दिल्ली में गया, मैं पास्टर टाइटस से कलीसिया में था, मैंने अपना सीक्रेट नहीं बताया, मैं आज यहां पर बताऊंगा. कैन आई से समथिंग? યસ. डोंट थिंक that you are small or you are lesser. ભલે તમે નાના છો કે ગમે મોટા છો. In the coming days, God is going to lift all of you. बहुत ऊंचा उठाने वाला आप सभी को. ઓ I've been to Delhi church. હું मैं દિલ્હી- मैं હું- मैं હું दिल्ली के દિલ્હી कलीसिया में ચર્ચમાં गया, હતો. હું દિલ્હી ચર્ચમાં बहुत હતો. कलीसिया में गया, but पास्टर यहाँ का एटमॉस्फेयर इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. परमेश्वर ये नहीं देखता है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है या सूरत गुजरात का कैपिटल है. परमेश्वर वो नहीं देखता है. परमेश्वर उसको देखता है जिसका अंदर में भूखा और प्यासा है. आप सभी लोग कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो. आप लोग छोटा नहीं हो. आत्मा में यू आर जायंट्स. आप लोग बहुत बड़ा हो. मैं भविष्यवाणी करता हूं पास्टर. टुडे आई प्रोफेसर दिस चर्च, यहां कलीसिया से पास्टर, इन दिस चर्च people will come from different places from Gujarat just to attend revival meeting here. આ જગ્યા પર એવા ગુજરાતના અલગ અલગ જગ્યાઓ પરથી આ જગ્યા પર લોકો આવશે. मैं भविष्यवाणी से गुजरात से नहीं, मध्य प्रदेश से, नेबरिंग स्टेट से लोग इस कलीसिया में आएगा बेदारी को देखने के लिए. पास्टर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जो पवित्र आत्मा कह रहा है मैं वो कह रहा हूं. मैं परमेश्वर का मैं एक नबी हूं. आई ओनली स्पीक व्हाट द लॉर्ड सेज. एंड परमेश्वर इस कलीसिया का भविष्यवाणी कर रहा है. पास्टर गेट रेडी, तैयार हो जाओ. एक्सटेंशन फॉर, तैयार हो जाओ. एक्सटेंशन के लिए तैयार हो जाओ. कैन यू ट्रांसलेट दैट व्हाट आई जस्ट सेड? I just said get ready for extension. વિસ્તાર વધારવાને માટે તૈયાર થઈ જાઓ. अलग अलग जगहों से लोग आपका कलीसिया में इस बेदारी को देखने के लिए आएंगे. अभी आप अलग जगह जा रहे हो ना, आने वाले समय में अलग जगह से लोग यहां में आए. पास्टर अरविंद उस समय प्लीज डू नॉट फॉरगेट मी, मुझे भी प्लीज भुलाना. ऑल द मेंबर्स विश्वासी प्लीज मुझे मत भूलना. परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करने वाला है, मुझे याद करना. पास्टर मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए मैसेज नहीं. आप लोग ऑलरेडी आत्मा में बहुत भरा हो. मैं दिल्ली में गया, बहुत सारा कलीसिया में गया, बट ये कलीसिया इट इज समथिंग डिफरेंट. कुछ तो अलग है यहाँ, कुछ तो अलग है यहाँ. सिस्टर कैन यू प्लीज कम हियर? कुछ तो अलग है यहाँ. कुछ तो somebody से अपना पर्स देकर बोलो, कुछ तो अलग है यहाँ. कुछ तो अलग है यहाँ. कभी भी do not ever think yourself as small. ક્યારે એવું નહીં વિચારશો કે અમે નાના છીએ. I tell you today, હું તમને કહેવા માંગુ છું આજે. I've been to many big churches, હું ઘણા મોટા મોટા મંડળીઓમાં ગયો but છું. I tell you today, પરંતુ આજે હું કહેવા માંગુ you છું, are bigger than them in the spirit. ઓ તમે તેમનાથી પણ વિશાળ મોટા છો. The Lord wants permission. The Lord wants to deliver you from your mindset. દેવ તમને તમારો જે મનનું જે બંધન છે તેમાંથી આઝાદ કરવા માંગે છે. Pastor, the problem is this. जैसा आपका सोच होगा ना, परमेश्वर उसी हिसाब से ही काम कर सकता है. अगर आप सोचेगा कि नहीं मैं छोटा हूं, मुझसे कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा. आज सोचो मैं छोटा नहीं, मैं भरा हूं. આમેન. परमेश्वर बार बार मुझे पास्टर मुझे ये कह रहा है, आने वाला समय में पास्टर गेट रेडी टू कंडक्ट रिवाइवल मीटिंग्स. ઓ આમેન. पास्टर अलग जगह में नहीं, इसी कलीसिया में रिवाइवल मीटिंग्स. गेट रेडी. पास्टर यू नीड टू ऑर्गेनाइज होल नाइट प्रेयर. गेट रेडी more and more.
लोग बाहर से लोग यहां पर आएगा। आपका कलीसिया में लोग बाहर से आने जा रहा है। आपके कलीसिया में लोग बाहर से यहां में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां में परमेश्वर का उपस्थिति कुछ अलग ही होने वाला है। जब मैं वहां में बैठा हुआ था, परमेश्वर मुझे बार बार कह रहा है, टोनिया टेल माय पीपल दैट समथिंग इज हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर। कुछ तो बदल रहा है। જ્યારે હું ત્યાં બેઠો હતો, પવિત્ર આત્મા વારંવાર કહેતો હતો, ટોનિયા આ લોકોને કહે કે કંઈક તો અહીંયા થવાનું છે। कुछ तो बदल रहा है। सेला फराना सियाटलेरा ओ राबाला बाला बारांडा ला बाला भाला था। पवित्र आत्मा कम, तेरी उपस्थिति आने पाए। He's doing something in this place. He's doing something in this place. આ જગ્યા પર પ્રભુ કંઈક કરી રહ્યો છે। He's doing something in this place. ઓ પ્રભુ કંઈક કરી રહ્યો છે આ જગ્યા। Shaka la pa pa la para pa la para. Ra pa 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 pa. Raga da 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 da. Le brasse के para para. सब लोग अपने पैरों में खड़े हो जाओ। सब लोग આવો આવો આપણા સ્થાનમાં अपने ઊભા થઈ पैरों में જાઓ। खड़े हो जाओ। આવો આપણા સ્થાનમાં ઊભા થઈ જાય। આવો આપણા पैरों में સ્થાનમાં खड़े ઊભા हो થઈ જાઓ। દરેક પોતાના સ્થાનમાં ઊભા થઈ જાઓ। હાલેલુયા। આવો દરેક જણ પોતાના સ્થાનમાં ઊભા થઈ જાય। Pastor, there is fire moving in this place. ઓ આ જગ્યા પર દેવની આગ ઉતરી રહી છે। આમેન। मैं आग को देखता हूँ। आग 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 आग। દેવની આગને હું જોઈ રહ્યો છું। Tonight some of you will receive fire. આજની રાત્રે આમાં તમારામાંથી આગને અનુભવ કરશો। God is changing પરમેશ્વર કંઈક નવું કરવા જઈ રહ્યો છે। the spiritual status of this church. ઓ આત્મિક જે વાતાવરણ છે એ ઊંચું થઈ રહ્યું છે। Pastor, after tonight, આજની રાત્રિ પછી the presence of God will become more stronger in this place. ઓ આ જગ્યા પર દેવનું સામર્થ્યની સાથે કામ કરશો। The presence of God will become more and more and more stronger here. ઓ દેવનું સામર્થ્ય ઉપસ્થિતિ તમે અનુભવ કરશો। The presence of God will become more and more and more and more stronger. ઓ દેવનું સામર્થ્ય વધારે ને વધારે તમે અનુભવ કરશો। હાલેલુયા। I will begin to do something now. Now I will just pass from here. હું અહીંથી પસાર થઈશ। The moment I pass, જ્યારે હું અહીંથી પસાર થઈશ, the presence of God will come upon you. ઓ તો દેવની ઉપસ્થિતિ તમારા પર ઉતરી Some આવશે। of you will fall under the power of God. ઓ તમારામાંથી ઘણા દેવના સામર્થ્યની અંદર આવી જશો। Get ready, get ready, get ready. તૈયાર થાઓ, તૈયાર થાઓ। New level, new level, new ઓ level. નવા સામર્થ્યને માટે તૈયાર થાઓ। A greater anointing. ઓ એક સામર્થ્ય અનુભવ। Holy Spirit, પવિત્ર આત્મા, as I begin to pass, ઓ પવિત્ર આત્મા અહીંથી પસાર થાય। as I begin to walk, ઓ અહીંથી પસાર થાય। Holy Spirit, touch your people. ઓ હરેકને સ્પર્શ કરો। As I begin to walk, Holy Spirit, ઓ પવિત્ર આત્મા અહીં ચલાયમાન કરો। touch your people. ઓ તમારા લોકોને સ્પર્શ Get કરો। ready, get ready, get ઓ ready. તૈયાર થાઓ, તૈયાર થાઓ। 1, 1 2, 2 3. 3 Now, begin to move. Begin to move. Begin to move. Hobby. 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 अंतिम दिनों के अभिषेक अभी। सारे लोगों के हुए कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें
अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ओ अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तरह पे सुनी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तरह पे बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। सिनाई पर्वत की चोटी पर पे बड़ी सेना को चलते देखो। इस्राएल के एक खुदा, वह अग्नि को हम पर डूबे। पर्वत की चोटी पर पे अग्नि ज्वाला को जलते देखो। इस्राएल के एक खुदा, वह अग्नि को हम पर डूबे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। 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 बाबा बाबा शदा Rabala, Rabala, Rubana Rabala, Shazana. Rabekete,
राकासांदा लाभाला कथा पिता increase this little, can increase this little, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जीसस जीसस पिता, सब लोग अपने हाथों को उठाओ अभी। पिता, मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर, દીકરી, I see the Lord's hand upon you. હું તમારા પર દેવનો હાથને જોઈ રહ્યો છું. You will carry the presence of God. તો દેવની હાજરીને લઈને ચાલશે. From tonight onwards, આજની રાત્રિ બાદ your spiritual life will begin to change. ઓ તારું આત્મિક જીવન બદલાતું જોવા મળશે. Just can you come a little forward? આગળ આવીશ. The Lord says to you, પ્રભુ કહે છે, He has a great plan about your life. એક મોટું દર્દ તમારા હૃદયમાં છે. The Lord says to you, stop doubting. ઓ દેહ પર શંકા કરવાનું છોડી દો. In the coming times, great things will begin to take place. ઓ આવનાર દિવસમાં એક મોટું કાર્ય તમારા થકી થશે. When you will begin to worship, જ્યારે તમે ખરેખર આત્મામાં આરાધના કરતા થઈ the જશો, presence of God will begin to manifest. ઓ દેવની હાજરી એનું પ્રકટીકરણ થતું Sister, જશે. lift up your hands, lift up your hands, ઓ lift up your તમારા hands. હાથોને ઊંચા કરો. And while I was talking about the Holy Spirit, ઓ જ્યારે હું બોલી રહ્યો છું ત્યારે the Holy Spirit was talking inside your heart as well. ઓ અત્યારે જ તમારા હૃદયમાં પવિત્ર આત્મા વાતો He કરી is રહ્યું છે. calling you more closer to Him. ઓ તે તમારી નજદીક આવવા માંગે છે. Holy Spirit, પવિત્ર આત્મા right now, અત્યારે જ touch, ઓ સ્પર્શ કરો, touch. સ્પર્શ કરો. 1, 1 2, 2 3, 3 ઓ સ્પર્શ કરો. right now, right now, ઓ અત્યારે જ, right now. અત્યારે જ. From tonight onwards, આજની રાત્રિ બાદ your spiritual life will change. ઓ તમારું આત્મિક જીવન બદલાઈ Your જશે. spiritual life will change. ઓ આત્મિક જીવન બદલાઈ Your જશે. spiritual life will change. ઓ આત્મિક જીવન Your બદલાઈ spiritual જશે. life will change. આત્મિક જીવન બદલાઈ In the name of Jesus. જશે. ઈસુ નાઝરીના નામથી. ઓ ઈસુ Jesus નાઝરીના mighty. નામથી. Raka la pa la pa shekura. सब लोग हाथों को उठाओ अभी। ઓ દરેક પોતાના હાથોને ઊંચા કરો. पिता, मैं यीशु के नाम से ઈસુ નાઝરીના નામથી इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ઓ આ દરેકને માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. पिता, आज से આજથી तेरे उपस्थिति તારી હાજરી उनके जीवन में और ज्यादा होने पर, ઓ આમેન. आज से प्रभु इस कलीसिया में एक नया लेवल ऑफ एनॉइंटिंग होने पर, આમેન. प्रभु आज से इस कलीसिया में पहले से भी बढ़कर आपका भरा मुंह में धोने पर, આમેન. पास्टर पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, आज से पवित्र आत्मा का मूवमेंट और भी ज्यादा यहाँ पर होने वाला है। ઓ આમેન. पास्टर, लोग जैसे यहाँ में एंट्री करेगा, आपको कुछ करने के जरूरत, चंगा ऐसे होने लगे। આમેન. परमेश्वर मुझे एक दर्शन सा दिखा रहा है। ઓ પરમેશ્વર મને એક દર્શન બતાવી રહ્યું છે. सोलोमोन जब परमेश्वर का मंदिर बनाया था, ઓ સોલોમને જ્યારે દેવનું મંદિર બનાવી દીધું, बाइबल के तो मंदिर में परमेश्वर का महिमा भरा हुआ था। ઓ તે જગ્યા પર દેવનો મહિમા ઉતરી આવ્યો. परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि ये जगह उसी मंदिर की तरह महिमा भरा ઓ हुआ है। આમેન આમેન આમેન. તે જે સોલોમનના મંદિરમાં દેવની ઉપસ્થિતિ ઉતરી આવી, તેમ આ જગ્યા પર ये ઉતરી આવી. कलीसिया एक महिमा का कलीसिया से जाना ઓ चाहिए। આ મહિમામાં બદલાઈ જશે. एक महिमा का कलीसिया, એક મહિમાયુક્ત एक કલીસિયા. महिमा का એક कलीसिया। મહિમાયુક્ત કલીસિયા. पिता, यीशु के नाम से मैं सभी को आशीष करता हूँ। ઓ ઈસુના નામે હું આશીર્વાદિત કરું છું. पिता, आज से सभी का आत्मिक जीवन में परिवर्तन आने पर, ઓ પિતા આત્મિક જીવન પરિવર્તન આવો. आत्मिक जीवन में परिवर्तन आने पर, આત્મિક જીવનમાં પરિવર્તન. यीशु के नाम से, ઈસુ નાઝરી નામથી. यीशु के नाम से, ઈસુ નાઝરી નામથી. यीशु के नाम से। ઈસુ નાઝરી નામથી. प्रभु, और एक बार પિતા ફરી એકવાર हम यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं। ઈસુ નાઝરી નામથી અમે તમારી સમક્ષ આવીએ છીએ. पिता, पास्टर अरविंद के लिए प्रार्थना करता हूं, પાસ્ટર અરવિંદ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. उसका मिनिस्ट्री के लिए, એમની સેવાને માટે, इस कलीसिया के लिए। આ મંડળીને માટે. प्रभु, तेरा योजना बहुत बड़ा है। ઓ પ્રભુ તારી યોજના મોટી છે. पास्टर अरविंद बार बार प्रभु मुझसे कह रहा है ઓ પાસ્ટર વારંવાર દેવ કહી રહ્યો कि છે, आप सिर्फ इस जगह के लिए नहीं बने हो। તમે આ ફક્ત આ જગ્યાને માટે નથી The બન્યા. Lord is increasing your territory in the spiritual realm. ઓ આત્મિક જહામાં ઓ પરમેશ્વર તમારી હદોને વધારી રહ્યો છે. Pastor, mark my word. Mark my words. ઓ મારા જે શબ્દો પર ધ્યાન રાખો. By next year, આવતા વર્ષે people will come to this church from other states. ઓ લોકો બીજા રાજ્યોમાંથી આ જગ્યા પર આવશે. अलग स्टेट से लोग इस कलीसिया में आने जा रहा है। આમેન. ये कलीसिया का रिवाइवल फायर को लेने के लिए वो लगाएगा।
जो उपस्थिति यहां में है, उस उपस्थिति को पाने के लिए वो लोग आएगा। न्यू फेज ऑफ रिवाइवल हैज स्टार्टेड। ઓ નવા સ્તરનું એ રિવાઇવલ જાગૃતિ શરૂ થઈ न्यू ગઈ. फेज, न्यू फेज, न्यू फेज, બોલો न्यू फेज, न्यू फेज, न्यू फेज। બોલો एंड आज से जब आप लोग प्रार्थना करने लगेगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमरे में लिटरली आप महसूस करने लगोगे। सही गुजरात। જ્યારે તમે આજની રાત્રિથી પ્રાર્થના કરવા લાગશો, દેવની ઉપસ્થિતિ તમારા રૂમોમાં આવતી થઈ જશે. आप सब लोग, you will begin to cry, you will not be able to stop yourself। તમે રડતા થઈ જશો. તમે દેવની હાજરી એવી હશે કે તમારા આંખોમાંથી આંસુ વહેતા થઈ જશે. Even if you try to stop prayer, you will not be able to stop praying। તમે પ્રાર્થનાને ખુદ બંધ કરવા માંગશો, પણ પ્રાર્થના તમારાથી બંધ નહીં થશે. God is going to be more closer to you than before। પહેલા કરતા પણ વધારે તમારા રૂમોમાં તમારા જીવનમાં દેવની ઉપસ્થિતિ હશે. पिता इस कलीसिया को और एक बार પિતા આ ફરી મંડળીને ફરી એકવાર मैं यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूं। ઈસુ નામથી આશીર્વાદિત કરું છું. प्रभु धन्यवाद, उस रिवाइवल के लिए धन्यवाद प्रभु। આ જાગૃતિને માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. प्रभु ये रिवाइवल पूरा गंगापुर में यीशु के नाम से पूरा होने पाए। પ્રભુ આ જાગૃતિ ગંગાપુરમાં થવા પામે. प्रभु मैं भविष्यवाणी करता हूं, પ્રભુ હું ભવિષ્યવાણી કરું છું. ये गांव में जितना भी लोग हैं, આ ગામમાં જેટલા પણ લોકો છે, वो सब प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए, તે હરેક ઈસુ મસીહને ઓળખવા પામે. यीशु को जानने पाए। ઈસુને ઓળખવા પામે. पिता और एक बार मैं सभी को मैं आशीष करता हूं। પિતા હું દરેકને ફરી એકવાર આશીર્વાદિત કરું છું. इनके जीवन में कभी कमी गति आने ना दीजिएगा। એમના જીવનમાં કમી ઘટી આવવા ન દો. हर एक कमी गति के आत्मा को मैं दाटता हूं। જે કમી ઘટી લાવનાર આત્માને હું ધમકાવું છું. भरपूरी का आत्मा यीशु के नाम से आने पाए। ભરપૂરીનો આત્મા ઈસુના લીધે આવો. ये प्रार्थना આ પ્રાર્થના हम सभी लोग અમે સાથે पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता है। પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માના નામે માંગીએ છીએ. एंड चर्च कहे, મંડળી કહે, एंड द चर्च कहे, મંડળી કહે. Hallelujah, hallelujah. न्यू लेवल ऑफ रिवाइवल हैज स्टार्टेड। નવા પ્રકારની જાગૃતિ શરૂ થઈ ગઈ છે. ગ્લોરી, હાલેલુયા. Baba. किस किस को एक आजादी सा महसूस हो रहा है? Yes. કેટલાને સ્વતંત્રતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. मुझे आत्मा में महसूस हो रहा है, पास्टर यहां से कुछ निकल रहा है, આમેન. यहां से कुछ निकल रहा है, कुछ बंधन टूट गया है। परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि यहां में कुछ लोग था, आप खराब सपना देख रहा था। ઓમ પરમેશ્વરે મને બતાવ્યું અહીંયા ઘણા લોકો ખરાબ સ્વપ્નો જોઈ રહ્યા છે. आज से वो खराब सपना दोबारा आपके पास आने वाला नहीं है। હવે પછી ખરાબ સપનો નહીં આવશે. शैतान का सारा सामर्थ आपके जीवन से टूट गया है। આમેન, આમેન, આમેન. आपका परिवार के ऊपर जो दुश्मन का सामर्थ था, वो आज टूट गया है। આમેન. आज अपने घर आनंद के साथ वापस जाना, क्योंकि जय आपका है, जय आपका है, जय आपका है। क्या आपको ये गाना पता है? जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। मैंने कहा भाग जा शैतान, जय आज मेरा है। सिर्फ भाग जा शैतान नहीं, वो भाग गया है। Yes. आज से जब आप शैतान को ढूंढने का भी कोशिश करेगा, आपको नहीं मिलेगा। Hallelujah. पहले प्रॉब्लम आपको भगाता था ना, अभी अब प्रॉब्लम को ढूंढेगा। मेरा प्रॉब्लम तू कहां पर है? पहले शैतान आपको भगाता था, अब यहां पर हम शैतान को भगाएगा। Amen. बाइबल टॉक्स अबाउट गोलियत एंड डेविड एंड गोलियत। બાઇબલ દાઉદ અને ગોલિયાત વિશે વાત કરે છે. जब इजराइल लोग जब गोलियत देखा, सब डर रहा था। गोलियत इजराइलों को तरफ आ रहा उनको मारने के लिए, लेकिन जैसे डेविड गोलियत को देखा, पता है डेविड क्या करता है? डेविड गोलियत का तरफ भाग रहा है। आज
दुश्मन हमारा प्रॉब्लम हमारा पीछे नहीं, दुश्मन हमारा पीछे नहीं, हम लोग दुश्मन को पीछे से मारने